Everyone, I hope my voice is clear to you. It is audible. If yes, then reply me with an yes. Okay, great. Yeah. Uh, we'll be continuing with the same chapter. We started with chapter number 8, that was Introduction to Economics. We learned about economics and economy. In the last lecture, we learned about economy. We learned 3 types of economy, that was capitalist, socialist, as well as mixed economy. And we also learned the factors affecting economy. Okay, and मैंने homework भी दिया था. I've given you homework regarding learning the 3 types of economy. So, Shashikant sir, are you there? Okay. So I'll be asking you some questions. You need to answer that. My first question regarding economy is, India practices which type of economy? Yes, you need to answer through chat. India, yeah, the mixed economy. Great. What is the main second question? Yes, it's correct answer, mixed economy. The second question is, what do you mean by, or what is the main motive of capitalist economy? What is the main motive of capitalist economy? Okay, great. What is the main motive of socialist economy? Capitalist economy is to earn profit. Socialist is to provide social welfare. Great. Okay, thank you. Good answer. Uh, now we learned the different types of economy, that is capitalist, private, that is socialist, as well as mixed economy. Now last time I had a question कि sir अभी कौन सा economy use हो रहा है? अभी कैसे ना, let me tell you कि on in the books it is given as mixed economy, socialist economy and capitalist economy, but in real at present every country is practicing mixed economy, to be frank. But it is given in the book that China practices socialist economy, USA practices capitalist economy. वो उनका main picture है, but inside everyone is practicing mixed economy. But you need to write in your answers that USA practices capitalist economy, India practices mixed economy, and China practices socialist economy. Okay. Now we'll be continuing with the chapter. We'll come to the next part of the chapter. The next part is globalization. So I'll be sharing my screen with you. So hold for a second. Okay. Okay. Now, if you talk about globalization, I think so you don't have an idea, clear idea about globalization. Now, globalization, how it came in India, let us understand that. मैं थोड़ा introduction देने वाला हूँ कि globalization कैसे आया है, so listen to this carefully. Now, India got independence on 1947. लेकिन 1947 से लेके 1991 तक, let me be clear, 1947 से लेके 1991 तक, India had a closed economy. Again, I'm repeating, India had a closed economy. Closed economy का मतलब क्या है कि बाहर का कंट्री का जो भी गुड्स है वो इंडिया में नहीं आ सकता है. इसको बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी. मींस जो एकदम एसेंशियल गुड्स है ना वो ही इंपोर्ट करते थे इंडिया. लग्जरी गुड्स इंपोर्ट नहीं होता था, या कोई और भी गुड्स, कंफर्टेबल गुड्स भी, सिर्फ एसेंशियल गुड्स. फॉर एग्जांपल, वी रिक्वायर मिनरल ऑयल इन ऑर्डर टू गेन पेट्रोल एंड डीजल. तो मिनरल ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते थे वो टाइम पे. तो हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी था 1991 तक. लेकिन 1991 में क्या हुआ, अपने यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया. ठीक है, देयर वाज अ डिक्लाइन इन फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज मतलब यूएस डॉलर्स. अच्छा, अभी इंडिया को यूएस डॉलर्स क्यों चाहिए? इंडिया को यूएस डॉलर्स चाहिए बिकॉज जब भी हम लोग मिनरल ऑयल इंपोर्ट करते हैं ना, तो हम लोग इंडियन करेंसी नहीं देते हैं, हम लोग यूएस करेंसी, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज देते हैं. तो अपने पास भी यूएस डॉलर्स होना चाहिए टू बाय द मिनरल ऑयल. लेकिन हमारे पास यूएस डॉलर्स का जो क्वांटिटी था वो कम होने को हो गया.
अभी 91 के बाद में अगर यूएस डॉलर्स नहीं है तो यू कैन नॉट इंपोर्ट मिनरल ऑयल, आपके पास पैसा नहीं है, तो इंडिया वाज इन अ ग्रेव सिचुएशन। तो तभी इंडिया ने क्या डिसाइड किया कि वी शुड ओपन आवर इकोनॉमी। मैंने बोला 91 तक क्लोज था, 91 में इंडिया ने अपना इकोनॉमी ओपन किया, मतलब अपना डोर्स ओपन किया, और बाहर के जितने भी फॉरेन कंपनीज है वो इंडिया में आके बिजनेस करने चालू हुए। जब बाहर के कंपनीज इंडिया में आके बिजनेस चालू किए और इंडिया के कंपनीज बाहर कंट्री में जाके बिजनेस चालू किया, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। सो 1991 में देयर वाज अ पॉलिसी कॉल्ड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में ये ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया। And when globalization came in our country, trust me, it changed the picture of our country. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ने क्या क्या चेंजेस लाया है अपने कंट्री में, लेट अस सी विद एन एग्जांपल। नाउ देयर इज अ पीरियड बिफोर ग्लोबलाइजेशन एंड देयर इज अ पीरियड आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। अभी आपको नहीं पता चलेगा ये डिफरेंस बिकॉज यू आर बोर्न इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बट वी ट्रस्ट मी, वी वेर बिफोर ग्लोबलाइजेशन, मतलब हम लोग ग्लोबलाइजेशन के पहले आए हैं। ऐसा नहीं कि स्टोन एज है, बट ग्लोबलाइजेशन के पहले आए हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के पहले और बाद में बहुत डिफरेंस था। ठीक है, I'll share my experience, then you'll get to know. Now before globalization and after globalization, एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। The first example is, I'm sorry, so the first example of globalization is entertainment। ठीक है, ये सबसे आपका फेवरेट चीज है एंटरटेनमेंट। अभी बिफोर ग्लोबलाइजेशन देयर वाज ओनली वन चैनल ऑन टेलीविजन, ट्रस्ट मी। ठीक है, उसका नाम था दूरदर्शन। ओके, इसके लिए टीवी को रिमोट ही नहीं होता था, क्योंकि एक चैनल कितना चेंज करेंगे। दूरदर्शन ये अभी भी है, but currently because of globalization now we have 400 channels, we have different channels, we have HBO, we have Star Movies, we have Colors, we have Star Plus। तो ये ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से मिला है। ठीक है, अभी भी दूरदर्शन है अपने चैनल में, बट कोई देखता नहीं है, उसका जो दर्शन है वो दूर हो गया है। तो दूरदर्शन पहले एक चैनल था बिफोर ग्लोबलाइजेशन, ट्रस्ट मी इट वाज नॉट अ गुड चैनल। ओके, बट अभी अगर आप देखेंगे तो यू हैव वेराइटीज ऑफ चैनल। आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं जब छोटा था तभी मेरे को सिर्फ 2 घंटा या 1 घंटा मेरे को कार्टून देखने को मिलता था। देयर वाज ओनली 1 आवर ऑफ कार्टून एवरी डे ऑन दूरदर्शन। ठीक है, और उसका रिपीट भी नहीं होता था। बट आज के डेट में यू हैव अ 24 आवर्स कार्टून सीरीज गोइंग ऑन योर टेलीविजन। सो दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो यू गॉट चॉइसेस नाउ इन एंटरटेनमेंट, आपको क्या देखने का क्या नहीं। अभी अभी खुद कंफ्यूज हो जाता है क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ चैनल्स बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके, ये था एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के अंदर टेलीकम्युनिकेशन में भी चेंजेस आया है। Now, what are the changes which is brought in telecommunication by globalization is, initially हमारे पास दो ही कनेक्शन था, एक था MTNL एंड BSNL। ठीक है, ये लैंडलाइन का कनेक्शन थे। MTNL का फुल फॉर्म है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, BSNL का फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। ये हमने को लैंडलाइन कनेक्शन देता था। ट्रस्ट मी, तभी लैंडलाइन के लिए अगर आप अप्लाई करते तो यू यूज्ड टू गेट द कनेक्शन इन 1 मंथ, 1 महीने के बाद में मिलता था, आफ्टर 1 मंथ। बट अभी कैसा है कि आपने अपना डॉक्यूमेंट्स दे दिया, आपको फटाफट कार्ड मिल गया और 2 घंटे में चालू हो गया। अभी अपने पास कैसे, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन वी हैव मोर चॉइसेस लाइक वोडाफोन एंड एयरटेल। ठीक है, तो कैसे देखो अभी आपका पूरा चेंज हो गया, आपके पास चॉइसेस है। पहले चॉइस नहीं था, आपके पास सिर्फ एमटीएनएल था। एमटीएनएल का फुल फॉर्म है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, बट हम तभी बच्चे थे तभी हमने उसका एक नया फुल फॉर्म रखा था। उसका फुल फॉर्म ने रखा था मेरा टेलीफोन नहीं लगता, बिकॉज आधा टाइम वो डेड रहता था। ठीक है, बट अभी आपके पास बेटर सर्विसेज, नाउ यू हैव वोडाफोन एंड एयरटेल। ठीक है, यू हैव जियो सर्विसेज। ओके, तो टेलीकम्युनिकेशन में भी ग्लोबलाइजेशन आ गया। नेक्स्ट वी कम टू ऑटोमोबाइल। अभी ऑटोमोबाइल है ना, व्हेन वी वर स्मॉल देयर वर ओनली टू बिग कार्स, मतलब वी यूज्ड टू सी दैट कार्स। वन वाज एम्बेसडर। ठीक है, एम्बेसडर दैट टाइम वाज अ बिग कार, पॉलिटिशियंस यूज्ड टू यूज दैट कार। एंड देयर वाज फिएट। ठीक है, उसमें और उसमें कुछ भी नहीं होता था, मतलब एक स्टीयरिंग, सीट, एक्सेलरेशन, ये सब होता था, बाकी कुछ फीचर्स नहीं होते थे। इट वाज अ सिंपल कार। But now, because of globalization, you have many different brands of cars. That is BMW.
Mercedes, Audi, and they have variant features. Okay, there are a lot of features. There is music system, there is automatic system, there is sensor system, there are a lot of features. ये सब क्यों हुआ? Because of globalization, because the country started sharing their technology with them. So now we have different varieties of cars according to the preference, according to the purchasing power. Purchasing power matlab, if you if you want to buy a car, you can buy a Maruti Suzuki or you can buy a BMW according to your purchasing power. आपके पास चॉइस आ गया ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है? तो ऑटोमोबाइल में डिफरेंस आ गया. नेक्स्ट वी कम टू एविएशन. मुझे अभी भी याद है, व्हेन आई वाज स्मॉल आई यूज्ड टू ट्रैवल बाय एयर इंडिया. ठीक है, क्योंकि तभी एक ही था एविएशन कंपनी, एयर इंडिया, जो गवर्नमेंट बेस्ड है. ओके, बट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन नाउ वी हैव एन ऑप्शन ऑफ विस्तारा, स्पाइस जेट, गो एयर. ओके, ये सब अभी कैसे है कि नए अपने पास चॉइसेस है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अच्छा, एयर इंडिया में कैसे है कि अभी नाउ पीपल डोंट ट्रैवल बाय एयर इंडिया बिकॉज इट इज नॉट दैट सेफ एंड नॉट दैट ऑथेंटिक, बट लॉट ऑफ पीपल ट्रैवल थ्रू अदर airways, that is we travel by SpiceJet, Go Air. We keep Air India as a last option. Okay, तो अभी कैसा है कि अपने पास प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से अपने पास एविएशन में भी चॉइसेस आ गए. नेक्स्ट वी कम टू फूड. नाउ if I talk about food now, when I was small, we used to go to restaurants and we used to eat pav bhaji, and pav bhaji that time was a big thing. Pav bhaji, masala dosa, it was a big thing. We used to brag about that in our school. Trust me, कि अपन आज पाव भाजी खा के आया. ओके, तो तभी के टाइम पे वड़ा पाव और पाव भाजी बोलेगा तो बहुत फेमस था. और अभी क्या हो गया? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन नाउ किड्स दे आर मेनली अट्रैक्टेड टू बर्गर्स एज वेल एज पिज़्ज़ास, पास्तास, फ्रैंकीज. ये अभी का ट्रेंड हो गया है. नाउ आई डोंट सी पीपल और किड्स स्पेशली, ओके, ईटिंग पाव भाजी. चल मैं पाव भाजी का पार्टी देता, ऐसा कोई बोलता नहीं अभी. Now we go to cafes, we go to McD, we go to Subway. Okay, why? Because of globalization. ये ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से अपने को ये चॉइसेस मिला है इन फूड. ट्रस्ट मी. ओके, आफ्टर फूड वी कम टू क्लोथिंग. इवन क्लोथिंग में भी चॉइसेस मिला है. ठीक है, क्लोथिंग मतलब कैसा है ना, बिफोर ग्लोबलाइजेशन देयर वाज नो ब्रांड. पीपल यूज्ड टू स्टिच देयर क्लोथ्स टेलर के पास जाके. तो बिफोर ग्लोबलाइजेशन अगर देखेंगे तो ये आमिर खान है, ये है आमिर खान बिफोर ग्लोबलाइजेशन. So there was no fashion that time. Okay, if you can see properly, अगर आप उसको देखेंगे तो there is no fashion. Okay, but after globalization, because of introduction of branded clothes, because of introduction of style, now if you see Amir Khan, he's a different guy. If now कैसे है कि now many people have lot of branded clothes. I trust me, I still remember Nike and Adidas was called as imported goods. You know why it was called as imported goods when we were small? Because we used to import them. ठीक है, उसको इंपोर्ट करना पड़ता था, और इंपोर्ट हम लोग नहीं करते थे. कोई हमारा फैमिली मेंबर अगर अब्रॉड गया ना तो वो लेके आता था और हम लोग उसको इंपोर्टेड गुड्स बोलते थे. बट आज के डेट में हम लोग उसको इंपोर्टेड गुड्स नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं उसको? ब्रांडेड गुड्स. बिकॉज अभी वो इंडिया में भी मिलता है. देयर इज अ नाइकी आउटस्टोर, फैक्ट्री आउटस्टोर, देयर इज Adidas outlet over here, so we get all these things easily now. पहले नहीं मिलता था. पहला कोई अगर कोई रिलेटिव लेके आ रहा था तो मिलता था. ठीक है, इसके लिए हम लोग उसको imported बोलते थे. So this was the life of India before globalization and after globalization. Because of globalization, the standard of living of our country increased. We got choices. Okay, अभी for example, if you ask your grandparents or if you listen to your grandparents, वो लोग कभी भी ना टूथपेस्ट नहीं बोलते हैं. They say Colgate. कभी भी सुनो वो लोग बोलेंगे कोलगेट है क्या, टूथपेस्ट नहीं बोलेंगे. क्यों मालूम है? बिकॉज इन देयर टाइम्स बिफोर 1991 देयर वाज ओनली वन टूथपेस्ट, दैट वाज कोलगेट. बट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन नाउ वी हैव पेप्सोडेंट. ठीक है, वी हैव मिसवाक, बबूल, पतंजलि. तो अभी ब्रांड है अपने पास, तभी नहीं था. तभी एक ही चॉइस था, कोलगेट. ओके, सो दिस इज द रीजन व्हाई ग्लोबलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन मीन्स व्हाट? where different companies of different country do business in other countries. Okay, for example, McD, the headquarters is in America, but they have branches in India, they have branches in Saudi Arabia, they have branches in Malaysia, they have branches everywhere. That is called as globalization. So let us understand what is the meaning of globalization. तो यहाँ पर हमने देखा कि the life before globalization and after globalization.
Now if you talk about globalization means borderless economy. Borderless मतलब यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, बॉर्डर नहीं है, आप अपना बिजनेस कोई भी कंट्री में कैसे भी कर सकते हैं उनके परमिशन के साथ, बट अलाउड है. अभी borderless economy where there is a free movement of goods. अभी किसका किसका फ्री मूवमेंट है वो भी देखते हैं एक एक करके. There is a free movement of, first one is natural resources. Natural resources, for example, spices. Now India is famous for spices. We grow spices on a larger scale, and our spices are exported to Saudi Arabia. It is exported to Europe. Okay, अपना spices वहां पर बिकता है, लोग खाते हैं, उसको बोलते हैं globalization. So there is a free movement of natural resources. Okay, सिर्फ spices इंडिया में नहीं बेच रहे, हम लोग दूसरे countries में भी बेच रहे, इसको बोलते हैं globalization. Next we come to services. सिर्फ natural resources का globalization नहीं होता है, services का भी होता है. For example, IT. The IT industry of India is found in other countries also. The best example is Infosys. Infosys is an Indian IT company which is also there in USA and other European countries. Okay, तो इसको भी बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन. मतलब एक इंडियन कंपनी, आईटी कंपनी अपना सर्विसेज दूसरे कंट्री को भी दे रहा है और दूसरे कंट्री में उनका ऑफिस है, इसको बोलते हैं. Infosys is owned by, it was started by a person called K.R. Narayan Murthy. Okay, and now it is a big company. It is also listed in the shares exchange of USA. Okay, सर्विसेज के बाद में नेक्स्ट वाला है टेक्नोलॉजी. नाउ टेक्नोलॉजी भी शेयर हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से. द बेस्ट एग्जांपल इज उबर. ना अभी मेरे को बताओ, पहले जब भी हम लोग ट्रैवल करते थे, हम लोग टैक्सी से ट्रैवल करते थे. एक होता था कूल गैप और एक होता था काली पीली टैक्सी, जिसको हम लोग बोलते हैं काली पीली टैक्सी. ठीक है, ये कंसेप्ट कभी हम लोग ने सोचा ही नहीं था, बट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी नाउ यू कैन book a cab through your phone, through a app. ठीक है, this technology is also brought by globalization. Uber is not a Indian company, ठीक है, but they came in India, they started their services over here because of globalization, and now we are getting the benefits of Uber and Ola. अभी नहीं, because lockdown है तो हम लोग travel नहीं कर रहे, but then also. Next one is capital. Capital, for example, have you heard about cars like Range Rover and Land Rover? Okay, there, and Jaguar. Now these are all British cars, but you know इसको किसने, अभी कौन इसका ओनर है? ये लैंड रोवर, रेंज रोवर और जैगुआर का द ओनर इज टाटा कंपनी. टाटा कंपनी ओन्स दिस three branded cars. Why? Because of globalization. Okay, now these cars are sold in India as well as in other countries also. The capital. Next one is profit. Now tell me, if globalization comes in a country, there is a lot of business opportunity for the people of our country, and there are many different type of choices of quality goods. So what will happen when the business increases, when the demand increases, when the supply increases, the profit will also increase. So because of globalization, lot of business have been started, different type of business have been started in our country, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट हुआ है. ठीक है, पहले कैसा था कि बिजनेस चालू करने के लिए 2 बार सोचना पड़ता था, बट अभी आप बिजनेस चालू करने के लिए आपको उतना सोचने का जरूरत नहीं है और आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अच्छा, बिजनेस कैसे करने का वो भी सीखने को मिलता है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसे मेंटेन करने का, प्रोडक्ट कैसे दिखना चाहिए, वो भी अपने को सीखने को मिलता है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. इससे क्या होता है? बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होता है. एंड द लास्ट, व्हिच इज द लास्ट पार्ट, is labor. Now if you talk about this picture, this is Burj Khalifa, which is located in Dubai. Now, Burj Khalifa was constructed by laborers, and more than 70% of labor which was found over there in this construction in Saudi Arabia was Indians and Pakistanis. So this is an example of globalization. Means this building, this huge building, skyscraper, was made or constructed by the laborers of India and Pakistan. Okay, why? Because there the reason is that there the labors are expensive. Indians and Pakistanis, the labors are cheap and they're more efficient. So they were working over there.
Okay, though they are located in India, but they were working over there. This is an example of globalization. Okay, people of our country are working over there. Is an example of globalization as a labor. So again, if the question comes, what is globalization? इस पे 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, what is globalization? तो मैं बोलूंगा globalization means borderless economy where there is a free movement of natural resources, services, technology, capital, profit, labor. अगेन अगर क्वेश्चन आया व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, तो आपको ये आंसर लिखना है, ग्लोबलाइजेशन मींस borderless economy where there is a free movement of natural resources, services, technology, capital, profit and labor. तो ये था ग्लोबलाइजेशन के बारे में. Okay, now we'll come to the next topic, that is functions of economy. For that I'll be sharing my textbook PDF. I hope you have a textbook with you. So in your textbook, in the last page, there is functions of economy. If you can see over here clearly, there is functions of economy. Now we learned about different type of economy. हमने स्टार्ट में पढ़ा था ना, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड एंड सोशलिस्ट. अब ये इकोनॉमी जो कंट्री अडॉप्ट कर रहा है ना, ये अलग अलग है, लेकिन इसके फंक्शन सेम है. सब इकोनॉमी के फंक्शन सेम है. हाँ, वापस मैं बोल रहा हूँ, यूएसए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट करता है, इंडिया मिक्स्ड करता है और चाइना सोशलिस्ट करता है, बट इसके फंक्शन सेम है. ठीक है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फंक्शंस वन बाय वन. फर्स्ट वन इज डिसाइडिंग द प्रोडक्ट एंड द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्शन. सबसे पहला चीज है इकोनॉमी में कि कौन सा प्रोडक्ट बनाने का है और उसका क्वालिटी कैसा होना चाहिए. कौन सा प्रोडक्ट क्यों मालूम है क्या? फॉर एग्जांपल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रहेगा तो वो ये प्रोडक्ट बनाएगा जिसमें उसको प्रॉफिट मिले, समझा, और वो अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएगा. सोशल इकोनॉमी में क्या होगा? सोशलिस्ट इकोनॉमी में वो लोग ये प्रोडक्ट बनाएगा जो सबको खरीदने को, मतलब फीजिबल हो, परवड़ना चाहिए, अफोर्ड करना चाहिए, वैसा प्रोडक्ट बनाएंगे. बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट द पीपल, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द प्रॉफिट. बट इसका क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा, एवरेज क्वालिटी होगा. समझ में आ रहा है? और मिक्स्ड इकोनॉमी में कैसा रहेगा कि प्राइवेट वाले प्रॉफिट के लिए करेंगे और गवर्नमेंट वाले या पब्लिक सेक्टर वाले क्या करेंगे? फॉर वेलफेयर. तो इट डिपेंड्स ऑन इकोनॉमी कि कौन सा प्रोडक्ट बनाने का है और कैसे क्वांटिटी का होना चाहिए और क्वालिटी का होना चाहिए. क्वांटिटी मतलब इट डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन. ठीक है, पॉपुलेशन जितना रहेगा उतना. Next one is minimize the production cost as much as possible. Now, what is minimizing the production cost? Cost of production. For example, अगर एक पेन बनाने का खर्चा 5 रुपया है, बट उसको बेचते हैं 10 रुपीज में, तो जो 5 रुपया बनाने का खर्चा है ना, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. लेकिन अगर मैंने मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज किया तो क्या हो सकता है? आई कैन रिड्यूस माई प्राइस. समझा? अगर मैंने 5 रुपए का खर्चा हो रहा है एक पेन के पीछे बनाने के लिए, अगर मैंने उसको 5 रुपए से 3 रुपया किया, तो मैं अगर 10 रुपया में बेच रहा था पहले, तो मैं अभी 8 रुपए में बेच सकता हूं उसको. आई कैन सेल इट इन 8 रुपीज. इससे क्या होगा? वो पेन का प्राइस कम होगा तो ज्यादा लोग खरीदेंगे. ठीक है, और लोगों को भी कैसा है कि कम प्राइस का प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लगता है. तो इसमें क्या है? आपका इकोनॉमी बढ़ेगा, बिकॉज दे विल बी बाइंग एंड सेलिंग. Next one is distribution of national income according to social and economic justice. Now, this is a difficult thing, but you have to do it. The national income of a country should be equally distributed among the people. But what is happening in major countries? The rich are getting richer and the poor are getting poorer. इसके लिए इकोनॉमी बैलेंस नहीं है. ठीक है, सबसे वर्स्ट कंट्री जहां पर there is a huge imbalance is Russia. And if you talk about Japan, वहां पे अच्छा है. Even in India, we have a lot of millionaires, and we have people who are staying in a 60-floor building, and we have a group of people who are staying in a one-room kitchen, or they don't have a place to stay also. So that is not an equal distribution of national income. But economy, function of economy क्या बोलते हैं? There should be an equal distribution of national income. Next one is making appropriate provisions for the economic needs of the future. अभी कैसे है ना, now we have to use the resources, use the materials sufficely so that it can suffice for the future generation. क्या हो रहा है आज? हम लोग we are using the resources indiscriminately. We are using mineral oil indiscriminately. We are using water,
फॉरेस्ट इनडिस्क्रिमिनेटली। तो क्या हो रहा है उसकी वजह से, माने वो रिसोर्सेज खत्म हो जाएगा और अपने फ्यूचर जनरेशन को नहीं मिलेगा। और फ्यूचर में अगर रिसोर्सेज नहीं रहेगा तो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा? बिकॉज हमने याद है, हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमी। उसमें क्या पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेज होगा तो ही आप लोग इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं, तो ही आप लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। बट इफ देयर इज नो नेचुरल रिसोर्सेज इन फ्यूचर, यू कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, यू कैन नॉट मेक एनीथिंग। ठीक है, तो आगे फ्यूचर इकोनॉमी घिर जाएगा। तो आपको अभी का इकोनॉमी के बारे में सोचना है और फ्यूचर के इकोनॉमी के बारे में भी सोचना है। ओके, नेक्स्ट वन इज डिसाइडिंग फॉर whom टू प्रोड्यूस, ओके, एंड who विल प्रोड्यूस। मतलब कैसा है कि किसके लिए बनाना है, कितना बनाना है, कौन बनाएगा, ये भी डिसाइड करना है। अभी फर्स्ट ऑफ किसके लिए बनाना है, वो इकोनॉमी पे डिपेंड होता है। इकोनॉमी मतलब फॉर एग्जांपल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो लोग बनाएंगे किसके लिए, जो खरीद सके, जिससे उसको प्रॉफिट मिले। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या, वो किसके लिए बनाएगा, फॉर द कॉमन पीपल, जो अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, तो ये है। सो दिस आर द फंक्शंस ऑफ इकोनॉमी। ये फंक्शंस हर एक इकोनॉमी का सेम ही है। ठीक है, so this were the 5 functions of economy. Thus an economy strives to create balance between limited resources and unlimited needs. See, every country, developed country हो या developing country हो, दोनों का नेचुरल रिसोर्सेज या कल्चरल रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहेंगे, बट वांट्स अनलिमिटेड रहेगा, चाहे वो डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो। बट उस कंट्री के जो गवर्नमेंट है या जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है, दे हैव टू फोकस की कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वांट है अभी के डेट में, और उसको फुलफिल करना है। ठीक है, आज के डेट में कैसे एवरी कंट्री ट्राइज टू फुलफिल एसेंशियल वांट। एसेंशियल बोलेगा तो बेसिक, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, तो वो पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, और उसके बाद में लग्जरी गुड्स एंड कंफर्ट गुड्स आता है। लग्जरी मतलब कैसे है कि ज्वेलरी, कार, कंफर्ट बोला तो एसी। ठीक है, तो वो बाद में आएगा, पहले एसेंशियल गुड्स आएगा। सो एवरी कंट्री हैज टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस and how much to produce. Okay, so this was about functions of economy. So today we learned about globalization and we also learned about functions of economy. So okay, so here this chapter ends. If you have any doubts,